Assalamu alaikum. How are you, students? This is Professor Shahzad Ahmed talking to you. Let me give my brief introduction first. But I've been teaching for the last 33 years right now, and my subject is English. I've been teaching in different institutions, like in the morning time, I'm teaching at Garrison College for Boys since 1995, and I've been teaching as visiting faculty member at university level and other institutions. So I've got plenty of experience at my back. Inshallah, we're going to have good time together. So to start with, let me introduce you to some basic aim of MDCAT. As you can see on your screens, what should be the basic aim of MDCAT studies? That is, first you need to check it out. Your basic English language skills definitely will be checked, and you will be evaluated as to your basic understanding of English structure, language, basic sentence structure, grammar, and other things. And these will be applied to different sections. You will be exposed to different parts of this subject. Like there will be benchmark for the test that has been developed according to the syllabi that you have covered in HSSC and in Cambridge. And since the students at MDCAT, they are going to have a wide variety of different educational contexts, and it will comprise different items regarding grammar, language, your competency, and your skill as to how you should manage. So you need to be vigilant regarding these objectives that you need to fulfill. You need to have a complete alignment between English syllabus used various sectors, right? Because your perfect knowledge that is required. You should have clear-cut idea as to the syllabi that has been laid down by the government, by MDCAT authorities, different benchmarks of English, and outline will be followed by this, and you have to see different issues, their difficulties, the ambiguous items, and the scope of high school educational that is not included. That means that there will not be any highly philosophical questions. You need to focus on your basic English language structure, your text that you have been studying at intermediate level. That will be your basic requirement. And another option, and this objective is to test different specifications, right? Then next is to design, select, and arrange test task items. So as you see, there are 5 basic objectives. First objective is, let me define it in a bit easy way, the syllabus that should be in perfect alignment. यानी जो syllabus आपका है ये आपके intermediate level के मुताबिक जो है वो चलना चाहिए, HSSC में जो पढ़ा है आपने. और ये different benchmarks जो हैं वो बनाए गए हैं. Benchmark का मतलब है कि एक standard जो है वो lay down किया गया है, outline जो बनाई गई है वो उसको follow किया जाएगा. Then you see third objective, right? To make sure that difficult and ambiguous items beyond the scope of high school education are not included. कि बहुत ज़्यादा जो मुश्किल items हैं या जो ज़ुमानी हैं जिसका आप को एकदम अंदाज़ा नहीं होता या आपकी जो understanding comprehension से beyond हैं उनको शामिल ना किया जा सके. आपके mental caliber या understanding के मुताबिक जो हैं वो as benchmark वो रखे जाएं. और इसका अगला जो है ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं, टू डिज़ाइन द टेस्ट स्पेसिफिकेशंस डिज़ाइन की जा रही हैं जिसके अकॉर्डिंगली फिर जो है वो आपको चेक किया जाता है.
और ऐसे आइटम्स जो हैं वो उनको सिलेक्ट किया जाता है, अरेंज किया जाता है जो आपके मेंटल कैलिबर और अंडरस्टैंडिंग को जो है वो आपके मयार पे पूरा उतरें और अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन वो सूटेबल हो। ठीक है, ऐसे आप जब देख रहे हो कि बेंचमार्क्स हैं हमारे पास और कंटेंट्स हैं, इस कॉलम में आप चेक कर रहे हैं, ये देखिएगा कॉम्प्रीहेंड की वोकेबलरी वर्ड्स जो हैं, ऑब्जेक्टिव इसका है। इसमें जो बेंचमार्क आपने फॉलो करने हैं ये आपने चेक करना है, यूज़ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज़ टू डिटर्मिन मीनिंग ऑफ द की वोकेबलरी। जो की वोकेबलरी है आपने उसके मीनिंग को जो है वो किस तरह जज करना है। सो यू नीड टू फोकस ऑन दीज आइडियाज़, बेंचमार्क्स like point 1.1 contextual clues and illustrations कि कॉन्टेक्स्ट किस में इस्तेमाल हो रहा है वो वर्ड जो है सेंटेंस के अंदर, जो वर्ड अंडरलाइन होगा, यू नीड टू गेट टू दैट कॉन्टेक्चुअल आइडिया and then you'll be getting the clues and for proper illustrations. So contextual clues are very important, and once you read the sentence you will be able to understand the context in that given manner and you'll be able to pick out the correct option. This is point 1.1, and then 1.2 background or prior knowledge. Definitely you need to have a strong background as you have been exposed to your study, so your thorough study and good understanding of word power with you, that will be a key factor for you to really underline or pick up the correct option that is there. The next we come to 1.3 morphology, syntax, phonics, knowledge of word relationship. Morphology, that shows a link of one word with the other, grammatically, structurally, syntactically, pragmatically, what does it really mean. So you need to understand the syntax, the semantics, the meaning that are involved, जो उसके अंदर मानी है, जो छुपे हुए हैं, एक दूसरे के साथ लिंक अप हो रहे हैं, और ये आपने देखना है, और साउंड रिलेशन जो है उसके साथ वर्ड के मीनिंग क्या बन रहे हैं, फिर आप उसके मुताबिक अपनी ऑप्शन के ऊपर जो है वो आते हैं. ठीक है. अच्छा, इसके बाद हम देख सकते हैं 1.4 नॉलेज ऑफ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स. आपके जो सिनोनिम्स की नॉलेज है वो बनती किस तरह बेटा कि आपने वर्ड पार जो है वो बनानी है अपनी. ठीक है. जैसे डिक्शनरी जो है उसका यूज़ आप करते हैं, सो यू मस्ट हैव मोबाइल विद यू to check out the meaning wherever you are in a fix. So you need to decide which meaning is the correct meaning. So synonyms इसके जो similar meaning होते हैं उसको कहा जाता है. ठीक है, ये जो word है. और antonyms जो हैं जो उसके opposite words होते हैं, और homophones जो होते हैं वो same sound words होते हैं. ठीक है, homo means same और phones means sound, एक ही sound वाले जो words हैं. सो आपके सिनोनिम्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग आपकी ग्रिप होनी चाहिए और एंटोनिम्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए, और इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए, और आपके पास वर्ड पावर जो है वो अगर होगी तो आप उसका सिनोनिम फाइंड आउट करेंगे. और आपकी जो टेक्सचुअल स्टडी है, टेक्स्ट इज़ द की एलिमेंट. ठीक है, जिस बच्चे ने किसी भी अपनी बुक की जो टेक्स्ट की रीडिंग है, ठीक है, उसमें आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सारी जो टेक्स्ट आपने पढ़ी हुई हैं, नॉवल से लेके बुक 2 हो गया, सारी बुक्स आपकी, तो टेक्स्ट की आपने अगर थॉरो स्टडी की हुई है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आ सकती है. ठीक है, वही बच्चा इसको पिकअप कर सकता है जो उसने पढ़ा है और याद किया और उसको अप्लाई किया है वर्ड्स के मीनिंग को. ठीक है बेटा, अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऑब्जेक्टिव 1 जो है उसमें बेंचमार्क आपने देखा है. फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कॉन्टेंट्स हैं, कॉन्टेंट्स में आप क्या देख रहे हैं जी, हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स फ्रॉम द कोर्स बुक और टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम सिमिलर कॉन्टेक्स्ट और द कॉन्टेक्स्ट द HSSC एंड CIE स्टूडेंट्स में बी फेमिलियर विद. सो कॉन्टेंट्स में ये चीज़ आ गई, हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स. पहले तो ये समझ लें क्या होता है कि हाई और लो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स वो होते हैं जो आप बहुत कॉमनली यूज़ किस्म के वर्ड्स होते हैं. ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी आप उसको कॉमन इस्तेमाल करते हैं, कॉमन वर्ड्स हैं लाइक रूम, चेयर, टेबल, क्लास,
राइट, पेन, मार्कर, वाइट बोर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आपके जो हैं ये आप मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं। और जो लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं जिसमें आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो कॉमन यूजेज में नहीं आते वो वर्ड्स इसमें आते हैं और ये कोर्स बुक में से सिलेक्ट किए जाते हैं जी, और आपके कॉन्टेक्स्ट के अंदर वही शामिल किए जाते हैं जो आपने पढ़ा होता है इसके अंदर। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है हमने यहाँ देखना है नंबर 2 पे देखें। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट कंट्रोल ऑफ टेंसेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब ये आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ऊपर ऑब्जेक्टिव में, सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो ये आ रहा है कि आपके पास जो है टेंसेस का कंट्रोल कितना आपको अच्छा आता है और सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर आपकी कितनी कमांड है। सो लेट्स सी दिस 2.1, यूज़ करेक्ट टेंसेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर इन राइटिंग। So for this purpose, benchmark is to evaluate you that you should have a correct knowledge of sentence structure. Your basic tenses should be immaculate and you should have a flawless knowledge about tense structure and different parts of the sentence that are merged together. ठीक है जी। इसके बाद आप देख सकते हो 2.2, identify mistakes in the use of tenses and sentence structure in रिटर्न टेक्स्ट। अब जब आपके टेंस के ऊपर कमांड होगी तो फिर ही आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि टेंसेस जो है या सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है लिखा हुआ उसके अंदर एरर कौन सी है। ठीक है, अगर आपको उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है देन यू विल नॉट बी एबल टू पिक आउट और आइडेंटिफाई एनी ऑफ द मिस्टेक्स दैट आर देयर, एंड वंस यू डू दिस यू विल बी एबल टू डू दिस विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, बट बेसिक नॉलेज इज़ योर टेंसेस शुड बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसमें जो आप नेक्स्ट कॉलम देख रहे हो जो कंटेंट्स आपको चेक करना पड़ेंगे, चेक आउट दीज ऑल प्रेजेंट पास्ट टेंसेस, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कंडीशनल्स, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, फ्रेगमेंट्स। ये चीज़ें जो है ना यू शुड हैव grip and perfect knowledge about these things, like all present tense forms, past tenses, 4 types of sentences, conditionals, types of clauses, fragments, different parts that you break up with fragments. So that is the basic requirement for you to do this. All right, then we see point 3 here. As you check out, see this point 3, demonstrate ability to differentiate between correct and incorrect structure of sentence and use of writing conventions of spelling, capitalization and punctuation. All right, so this is what you call it objective, and to fulfill this objective you are going to have this benchmark starting from this 3.1, which says that identify sentences with correct grammatical and style structures. So this point says that you need to pick out and identify, पहचानना है आपने, ढूंढना है sentences with correct grammatic and style structures, वो आपने जो है वो चेक करने हैं, because जो आपका पेपर सेटर होगा he is going to pose certain problems for you. It will not be a piece of cake, you have to really exert for it. अगर आपको इसकी बेसिक्स का पता है तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपको उसकी बेसिक्स नहीं आती हैं तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं दे आर वेरी ट्रिकी एंड यू विल बी रियली बैफल्ड टू आइडेंटिफाई एंड पिन पॉइंट वेयर डज द रियल डिफरेंस लाई। ठीक है जी, इसमें हम आते हैं फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 3.2। सो ये क्या कह रहा है जी, 3.2 कह रहा है आइडेंटिफाई सेंटेंसेस विद इनकरेक्ट ग्रामेटिकल एंड स्टाइल स्ट्रक्चर्स। सो मोर और लेस सेम आइडिया इज़ देयर, सेम डिमांड इज़ देयर जो ऊपर आपने 3.1 में की है। इसमें भी जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो आपने सेंटेंस सीक्वेंस किया, वो इंशाल्लाह हम सारा करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, बेसिक्स हम करेंगे, सेंटेंस जो है टाइप्स करेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, कंडीशनल जो है, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सो जो जितनी भी बेसिक्स हैं इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू कवर दैट ग्रेजुअली। ठीक है जी, और साथ साथ इसमें हम आपके सेशंस भी रखेंगे, लाइव सेशंस भी हो जाएंगे,
और रिकॉर्डिंग्स आपके पास आ रही हैं, उसमें डिस्कशंस हम कर लेंगे, जो आपके इश्यूज़ होंगे ऑल दीज इश्यूज़ विल बी रेक्टिफाइड देयर एंड देन। ठीक हो गया जी। सो 3.1 हो गया, 3.2 हो गया, देन वी मूव ऑन टू 3.3। check out this. First let me highlight these points, then I'll be explaining one by one these points to you. Basic idea, concept that should be with you. Identify use inappropriate capitalization and punctuation. ये बेसिक जो चीज़ है ना आपकी, ये पंक्चुएशन की ऊपर जो है ना वो कमांड को चेक कर रहा है कि आपने पंक्चुएशन मार्क्स लाइक किस तरह यूज़ करने हैं, सेमी कोलन जो है वो कैसे आपने यूज़ करना है। मतलब सेमी कोलन आप करते हो, आप अगर यहाँ पे देखो स्क्रीन पे तो ये उसका साइन होता है, ठीक है। एक फुल स्टॉप आता है और नीचे एक कॉमा जो है वो आ जाता है, ये सेमी कोलन जो है वो मार्क आप करते हैं। कॉमास जो हैं ये इस तरह आप लगाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे वो कॉमा मार्क इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अपॉस्ट्रॉफीज़ आप लगाते हैं, इस तरह एक छोटा सा मार्क होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो ये तो ये जो ऊपर आपको ये मार्क नज़र आ रहा है ये आपका होगा अपॉस्ट्रॉफी, जो इसके इक्वल होता है आई विल, ठीक है। इसी तरह और फिर आप देखते हो ये पोजेसिव्स के लिए यूज़ करते हैं, लाइक अलीज़ हाउस आप करते हो, अलीज़ पेन, ठीक है, अलीज़ पेन आप कर दो, तो ये पोजेशन को जो आपके ये शो करता है अपॉस्ट्रॉफी जो है। इसी तरह प्रॉपर नाउन्स हैं, एब्रीविएशंस हैं। प्रॉपर नाउन्स आप जो है किसी शख्स का नाम होता है, ठीक है, नेम ऑफ अ पर्सन, राइट, प्लेस, ये प्रॉपर नाउन्स है। मिसाल के तौर पे जो है मैं अपना नाम लिखता हूँ शहजाद, ठीक है जी, ये एक एग्ज़ाम्पल है प्रॉपर नाउन की। फिर आप लिख सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर, ये एक एग्ज़ाम्पल आ गई। मैं जस्ट आपको एक थोड़ा सा इंट्रो के तौर पे बता रहा हूँ इसमें कि ये चीज़ जो है इसमें शामिल होती है। और एब्रीविएशंस जो हैं जिसमें शॉर्ट फॉर्म्स आती हैं, मिसाल के तौर पे आप एब्रीविएट कर देते हैं, कोई कहते हैं जी कि लेस्को आप कर देते हो या वेबडा आप करते हो, ठीक है। तो एब्रीविएशंस फॉर्म्स जो हैं वो भी आपने उसमें इस्तेमाल करनी है। शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं ख़ास तौर पे, ये तो इसको हम एक्रोनिम्स भी कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म्स में आपने एब्रीविएट करना होता है, कुछ फॉर्म को आप शॉर्ट करके लिख देते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आप मिसाल के तौर पे आप ये जैसे कैन नॉट को कांट आप कर देते हो, तो एब्रीविएट भी कर देते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी कर देते हैं। इसमें अपॉस्ट्रॉफी भी आप देख रहे हो कि इस्तेमाल हो रहा है, ठीक हो गया। अब आप इसके सामने चेक कर रहे हो, जैसे ये हमने ऊपर देखे थे पॉइंट्स, तो इसके जो कंटेंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे इसमें नंबर पॉइंट 3 जो हमारा चल रहा है उसमें क्या है जी, ये आप चेक कर सकते हैं। उसमें आप करेंगे जी यूज़ द टेक्स्ट्स प्रिस्क्राइब्ड यूज्ड इन HSSC और CIE फॉर डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन करेक्टली एंड इनकरेक्टली रिटन सेंटेंसेस। कि जैसे ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जो कंटेंट आपको नज़र आ रहा है कि जो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट है HSSC और CIE की, वो आप उसको इस तरीके से टेक्स्ट की स्टडी की हो आपने कि आप इस काबिल हों कि करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर या रिटन फॉर्म में आप आइडेंटिफाई कर लें। वैसे मैं आपको ये क्लू दे रहा हूँ, हिंट ये दे रहा हूँ कि जो रॉन्ग सेंटेंस होता है ना, इट स्पीक्स इटसेल्फ, वो ख़ुद ही बोल रहा होता है कि मैं गलत हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको बेसिक्स का पता चल जाए ना उसमें, तो आप उसको बड़े कॉन्फिडेंस से चेक कर लेते हैं। लेकिन जब आप ABC आप चॉइसेस आपके पास हैं, फ़र्ज़ करें कि आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास दिया हो जी A, ठीक है जी, फिर आपके पास B है, ऑप्शंस आपके पास C, MCQs ये दिए हुए हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सारी पढ़ी हैं A B C D, तो उसमें जो A है, जो B है, C या D है, जो रॉन्ग है ना, वो A, C और D आपको पता चल रहा होगा कि ये बोल रहे हैं कि ये गलत है, और जो B है वो आपको एक साइलेंट मैसेज दे रहा होगा कि मैं ठीक हूँ। लेकिन पता उस बच्चे को चलेगा जिसको उसकी बेसिक्स का पता होगा, ठीक है।
ये वैसे आप नहीं जज कर सकते कि पढ़ें और अपनी विम्स के ऊपर, मतलब कुछ बच्चे करते हैं जी ठीक है जी कि यार ऐसे करो कि पहले जो 2 हैं उसका ए कर दो, अगले 2 जो है उसका बी कर दो, अगले का सी कर दो, डी कर दो। ये ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं, ऐसे नहीं होता। या आप करो जी कि सारे बी आर सही हो सकते हैं, सारे ठीक सी हो सकते हैं, ए सही हो सकते हैं। तो ये सारे आइडियाज़ हैं, ये सारी मिथ्स हैं जो स्टूडेंट्स ना हमें बताते रहते हैं और आइडिया ये लगाते रहते हैं, ये सारा गलत है। ठीक है, यू नीड टू बी रियलिस्टिक, और रियलिस्टिकली आप चेक कर सकते हो जब आपकी ग्रिप होगी। ठीक है, अंदाज़ों से काम नहीं चलेगा। अच्छा ठीक हो गया। अब आप चेक करते हो मज़ीद इसमें कि आपका जो पॉइंट आ रहा है वो आप नेक्स्ट ये वाला चेक करो, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इसको आप ज़रा देखो। ठीक है, इन कंटेंट्स में क्या बात हो रही है? द टेस्ट आइटम्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द टाइप ऑफ टेक्स्ट written by HSSC and CIE students and from the context common to both the streams. Context common to both the streams यानी एक तो टेक्स्ट बुक आपकी की एलिमेंट होगा, की फैक्टर होगा, बेसिक चीज़ होगी जिससे पूछा जाएगा HSSC और कैम्ब्रिज के स्टूडेंट से, और ऐसे कॉन्टेक्स्ट में से वो लेगा कि जो मतलब आपने उन दोनों स्ट्रीम्स के ऊपर अप्लाई होता है। यानी HSSC लेवल पे भी और CIE स्ट्रीम दोनों के अंदर जो टेक्स्ट आपने पढ़ी हैं, बैकग्राउंड आपको है, नॉलेज है, उसी के बैकग्राउंड के नॉलेज के ऊपर जो है आपकी एबिलिटीज़ को चेक करते हुए जो है वो टेस्ट जो है वो फॉर्मुलेट किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो ऐसे कॉन्टेक्स्ट से दे दें या ऐसी चीज़ से दे दें, बिल्कुल हवा में से कोई चीज़ दे दें या जिसका आपको कुछ पता ही ना हो वो ऐसा सवाल दे दें, ऐसा नहीं होगा। लेकिन डेफिनेटली वो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम तो पोज करेगा, इतना वो आसान तो नहीं बनाएगा, चूँकि उन्होंने शॉर्टलिस्ट करना है थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को, तो फिर आपको वो कुछ ना कुछ तो वो चेक करेगा एबिलिटी को, और जो होंगे नॉलेजेबल दे विल डेफिनेटली स्टैंड आउट and they will prove that they really mean business and they will be inshallah emerging as successful and triumphant students in the days ahead. अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं, जैसे आप देख रहे हो पॉइंट 4 जो है ये आप चेक करो, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसमें कहता है जी डेमोन्स्ट्रेट करेक्ट यूज़ ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड ऑफ आर्टिकल एंड प्रपोजिशंस। ये जैसे आपने पढ़ा होगा बच्चों ने कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है, यानी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, और आर्टिकल्स जो हैं ए और एन, ठीक है, आप इसमें करते हो ए और एन जो है आपका, आप ये आर्टिकल्स लगाते हैं, ए और एन जो है आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या फिर डेफिनेट आर्टिकल होता है द, ये इस्तेमाल करते हैं आप। प्रेपोजिशंस होते हैं सिंगल फोर्स वाले, टू, इन, बाय एक्सेट्रा, और इसके ऊपर हम इंशाल्लाह लेक्चर वगैरह पूरा रखेंगे। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डिमांड आपसे कर रहा है, और साथ आपसे डिमांड कर रहा है यहाँ पे इस पार्ट में पेपर के कि आर्टिकल्स का आपको पता हो कि ए एन आना है या नहीं आना, डेफिनेट आर्टिकल आना है या नहीं आना, कहाँ आना है, प्रपोजिशंस जो है वो कौन सा यहाँ पे आना है, कौन सा सूटेबल है। तो इसके ऊपर आपकी बेसिक्स होंगी तो फिर आप उसको आसानी से पिक आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप चेक करो यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट है, ये आप देखते हैं जैसे 4.1 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, 4.1 में जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसके ऊपर आप फोकस करो। यूज़ करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन रिटन टेक्स्ट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आपने सही तरीके से जज करते हुए आइडेंटिफाई करना है, और जो एरर होगी उसके साथ वो रिलेट ही नहीं करेगा। जो सब्जेक्ट आप लिखोगे और वर्ब लिखोगे वो उसके साथ रिलेट ही नहीं करेगा। तो वो आपने देखना है कि इसमें जो है वो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल आएगा, क्या आएगा, तो फिर आप उसको पिक कर सकते हो आसानी से। ठीक है जी, तो ये आप चेक करो। अब नेक्स्ट 4.2 इसमें चल रहा है, ये देखें इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या यहाँ पे आपको करना होगा। आइडेंटिफाई मिस्टेक्स इन द यूज़ ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन रिटन टेक्स्ट, ये भी वही आपसे डिमांड कर रहा है। ठीक है, 4.3 जो है यहाँ आपको क्या
डिमांड्स को फुलफ़िल करना है। आर्टिकल्स प्रपोजिशंस आपने लगाने हैं सही कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसको यूज़ करते हुए, और फिर आपने उसको करेक्ट जो है वो आइडेंटिफाई करते हुए एनसर्कल करना है। ठीक है जी। उसके बाद आप देखते हो 4.4 में क्या बात आ रही है, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी है आर्टिकल की, प्रपोजिशंस की, और वो यूज़ होंगी सेंटेंसेस में या शॉर्ट टेक्स्ट कोई दे सकता है, वो 2-3 लाइनें दे सकता है, उसमें ये चीज़ें शामिल कर देगा। जिसमें आर्टिकल कुछ इंसर्ट करने होंगे, रॉन्ग लिखे होंगे, प्रपोजिशंस आपने आइडेंटिफाई करने होंगे शॉर्ट सेंटेंसेस में, और शॉर्ट टेक्स्ट भी आपको वो दे सकता है। ठीक हो गया। चलें नेक्स्ट आप देखो 4.5 में क्या बात हो रही है। यहाँ कहता है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट आर्टिकल और प्रपोजिशन फॉर अ पर्टिकुलर टेक्स्ट। यानी यहाँ भी ये डिमांड है कि आर्टिकल आपने सही जो है वो सिलेक्ट करना है, और प्रपोजिशन जो है वो आपने सही कॉन्टेक्स्ट के अंदर से पहचानते हुए वो लगाना है। ठीक हो गया। तो अब आप चेक करो कि यहाँ पे आपने इस एरिया में जो इसके कंटेंट्स हैं इसको आपने तैयार कैसे करना है, ये कैसे हम तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, चेक इट आउट, सी इट। ये देखें आप, यूज़ द टेक्स्ट प्रिस्क्राइब यूज्ड इन HSSC और CIA फॉर सिलेक्टिंग टेस्ट आइटम्स एज वेल एज डिटर्मिनिंग द डिग्री ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, यहाँ कहता है कि टेक्स्ट ऐसी प्रिस्क्राइब जो की है उन्होंने, वहाँ से वो आइटम्स लेंगे कि कितनी उसकी जो है कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी कितना उसको मुश्किल बनाना है, कितना आसान बनाना है। ठीक है, यहाँ तक आप उसको वो पढ़ेंगे और वो आपको इन टेक्स्ट में से जो है वो टेस्ट आइटम्स जो है सिलेक्ट करेगा। और ये भी वही तकरीबन बात है, कह रहा है द टेस्ट आइटम्स टू बी सिलेक्टेड फ्राम द कॉन्टेक्स्ट कॉमन टू द टेक्स्ट एट HSSC एंड CIA लेवल। यानी इन दोनों लेवल्स पे जो है वो आपको वो टेक्स्ट जो है वो लेगा, एक HSSC लेवल पे और CIA लेवल पे दोनों जो टेक्स्ट इस्तेमाल हो रही हैं, कॉमन एलिमेंट्स जो हैं दोनों के, वो इस्तेमाल करेगा और आपको वहाँ से टेस्ट आपका जो है वो सेट करेगा। ठीक है, अब आप देखते हो यहाँ पे नेक्स्ट पे हम आते हैं, 0.5 हमारा चल रहा है। 0.5 में देखें मैं हाईलाइट कर देता हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। ये देखें पहले, डेमोन्स्ट्रेट एबिलिटी टू आइडेंटिफाई मिस्टेक्स इन सेंटेंसेस और शॉर्ट रिटन टेक्स्ट। दीज एरर्स कुड बी ऑफ इनअप्रोप्रिएट वर्ड ऑर्डर वोकैबुलरी। अच्छा, कहते हैं कि आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो सेंटेंसेस में, शॉर्ट रिटन टेक्स्ट में, कोई छोटे पैरे में, और ये जो एरर्स होंगी क्या होंगी, ये कुड बी इनअप्रोप्रिएट वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर जो है वो लिखा होगा गलत, तरतीब गलत होगी, वर्ड्स रॉन्ग होंगे, वोकैबुलरी जो है उसको उसने गलत तरीके से सिलेक्ट किया होगा, यानी एक वर्ड वहाँ पे लगता ही नहीं है, वो वर्ड लगाया होगा जो उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। सो इसमें आपके वर्ड ऑर्डर देखेगा और वोकैबुलरी जो है वो इनअप्रोप्रिएट वो इस्तेमाल की होगी, उसको आपने पिन पॉइंट करके हाईलाइट करके उसको फिर आपने फाइनल अपने आंसर में उसको आपने MCQs में ऐड अप करना होगा। तो ये आप देखो इसको, ये 5.1 में आपने जो है क्या बेंचमार्क रखा हुआ है, एरर्स को, वर्ड ऑर्डर को स्टाइल या वोकैबुलरी में आपने उसको फाइंड आउट करना है। यानी बात वही है जो हमने 0.5 में इधर की है, 5.1 में भी ये रिक्वायरमेंट है। और इसका जो कंटेंट आप देखोगे, तैयारी आपने किस तरह करनी है, वो ये चीज़ आप देख लो इस तरफ। टेक्स्ट और सेंटेंसेस जो हैं प्रिस्क्राइब, वो आपको वो लेगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए करेक्टली इनकरेक्टली रिटन सेंटेंसेस के अंदर टेक्स्ट ही वो इस तरह की आपको जो फ़र्ज़ करें आपके जो बुक्स हैं आपकी, ठीक है, उन्हीं में से वो कोई टेक्स्ट ले लेता है, कोई आइडिया ले लेता है, कोई जुमला ले लेता है, उसी को वो गलत करके तो आपको वो बताता है जी कि आप इसमें जो करेक्ट ऑर्डर है ABCD ऑप्शंस में वो कौन सा आपको ठीक लग रहा है, फिर आप उसको कर लोगे। ठीक है, लेकिन चीज़ वही है जैसे मैंने पहले बताया कि जितनी जिस स्टूडेंट की ग्रिप होगी टेक्स्ट के ऊपर, उतना ही अच्छे तरीके से वो काम कर सकता है। हम यहाँ पे इंशाल्लाह आपको बेसिक्स बताएंगे, लेकिन जो टेक्स्ट के ऊपर ग्रिप है परफेक्ट किस्म की, वो आप लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हर एक को आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम चेक करते हैं 0.6। ये देखिए ज़रा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको चेक करें आप, ये देखते जाइए।
अच्छा, डेमोन्स्ट्रेट एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड शॉर्ट रिटन टेक्स्ट एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज। यानी आपने जो रिस्पॉन्स है वो आपने बहुत सही तरीके से उसको जज करना है कि आपने आंसर जो है किसी क्वेश्चन का वो कौन सी ऑप्शन आपको ठीक लग रही है। उसमें आप ये देख रहे हो 6.1 कॉम्प्रीहेंड सिंपल ब्रीफ पैसेजेस। कॉम्प्रीहेंड का मतलब समझते हैं ना, समझना, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना। कॉम्प्रीहेंड होता है किसी चीज़ को समझना और उसके ऊपर अमल करना। सिंपल ब्रीफ पैसेजेस होंगे, इसमें आपको एबिलिटी होनी चाहिए कि उसके जो है कॉन्टेक्स्ट का पता हो, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर और किस तरीके से टेक्स्ट इस्तेमाल की गई है वो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि उसके कंटेंट्स क्या हैं, थीम क्या है, उसका कोर मैसेज क्या है, आइडिया क्या है उसके अंदर पैसेज में, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। और वैसे भी अगर आप किसी भी पैसेज का जो फर्स्ट सेंटेंस होता है ना, वो फर्स्ट सेंटेंस आपका जो है वो कहलाता है आपका टॉपिक सेंटेंस कहलाता है। वो जो पहला आपका होता है ना सेंटेंस फॉर्म, वो टॉपिक सेंटेंस आपका जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो टॉपिक सेंटेंस आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपको पहले ही सेंटेंस में जो है वो आपको मिल जाती है। जो आप पढ़ते हो कोई भी अपना पैरा, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको टॉपिक सेंटेंसेस जो हैं वो आपको शो करते हैं कि इस पैसेज के कंटेंट्स क्या हैं, इसमें बात आगे क्या हो रही है। ठीक है, फिर आप देखते हैं इसमें सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल रिस्पॉन्सेज टू द क्वेश्चंस पोज्ड टेक्स्ट एक्सप्लिसिट, कि बिल्कुल सही किस्म के रिस्पॉन्सेज आपने वहाँ पे पहचान के जो है वो उसको लिखना है। टेक्स्ट एक्सप्लिसिट यानी टेक्स्ट बेस्ड होते हैं। एक्सप्लिसिट लफ्ज़ का मतलब यहाँ पे आप नज़र आ रहा है आपको, ये वाला जो लफ्ज़ है टेक्स्ट एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट कहते हैं बड़ा वाज़े, खुला, सामने, ओपन, कैंडिड, जो आपको पता चल रहा होता है। और इम्प्लिसिट होता है जो इसका हिडन वर्ड होता है ना, छुपा हुआ, ये इसका एंटोनिम है इम्प्लिसिट का। एक्सप्लिसिट आपने ये वाला यहाँ पे देखा, तो एक्सप्लिसिट होता है ओपन, कैंडिड, बड़ा वाज़े, जिसको आप समझ सकते हैं, जो छुपा हुआ ना हो, मख्फी ना हो। और इम्प्लिसिट जो ना ये वाला लफ्ज़ ये जो है, इसका मतलब होता है हिडन, कोई चीज़ पोशीदा, छुपी। लेकिन आपने जो एक्सप्लिसिट टेक्स्ट मीनिंग है ना, उनको देखते हुए वाज़े जो मीनिंग निकल रहे हैं उनको आपने इनकॉर्पोरेट करते हुए जहन दौड़ाना है और आंसर जो है उसको पिक करना है कि इसमें बिल्कुल ठीक क्या ऑप्शन जो आपको नज़र आ रही है। ठीक है जी, ये चेक करें ज़रा। यूज़ द टेक्स्ट प्रिस्क्राइब्ड, सारी वही चीज़ें जो हमने पहले डिस्कस की हैं। ठीक है, यूज़ इन HSC और CI इस लेवल पे जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो सैम्पल्स आपको आने चाहिए और आपको इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए, तो इसके ऊपर फिर आप इसको पिक कर सकते हो। तो ये आपको बेसिक्स आज के जो इंट्रोडक्शन था, इंट्रो था या फर्स्ट प्रिलिमिनरी आपसे बातचीत करनी थी, उसमें यही था कि आपको बताया जाए कि भाई आपका जो सिलेबस है उसके, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि उसके एम उसका क्या है, चंद चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव्स हमने ये देखे, उसमें पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे आपके साथ डिस्कस हुए कि इसके एम्स क्या हैं। यानी एम इसके मकासद और ऑब्जेक्टिव्स तकरीबन एक ही मतलब होता है। इसके मकासद क्या हैं, 1 से लेके 5 तक हमने ये डिस्कस किए। फिर हमने देख लिया कि 1 जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बेंचमार्क क्या है, इसमें कंटेंट्स क्या आएंगे। ठीक है, फिर 2 देखा, इसके फिर हमने बेंचमार्क देखा, फिर हमने देखा कि कंटेंट्स क्या हैं। इसी तरह पॉइंट 3 देखा है और उसके जो है बेंचमार्क कंटेंट्स देखे हैं आपने। और पॉइंट 4 हमने देखा, इसका देखा बेंचमार्क कंटेंट्स आपने देखे। ठीक है, 5 देखा, इसका सारा ये चेक किया और फिर 6 हमने लास्टली देखा है। तो होपफुली आपको इसमें कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं आएगी। सो इंशाल्लाह विल बी मूविंग टुगेदर इंशाल्लाह विद लॉट ऑफ कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग एंड विल बी मूविंग टुगेदर विद लॉट ऑफ इंशाल्लाह ताला कोहेरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कोई मसला इंशाल्लाह नहीं आएगा। तो उसमें जैसे आप चेक करोगे कि आपके जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब आती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जो है वो आपने चेक करनी होती हैं। टॉपिक हम जो मेन कवर कर सकते हैं, टेंसेस हैं, उनके एस्पेक्ट्स हैं, क्लॉज आ गई, जैसे कंजंक्शन है या सेंटेंस है। ये मैं कुछ ब्रीफ आपको ना पॉइंट्स बता रहा हूँ
सिलेबस आउटलाइन या टॉपिक्स जो हम मेनली कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम रिटन फॉर्म में भी सारा करेंगे। जस्ट आज इंट्रो सेशन में एक ओरल आपके साथ कम्युनिकेशन वो चल रही है। वोकैबलरी आप करोगे, ग्रामर वर्ब की करोगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, क्लोज सेंटेंस ये चेक करोगे आप, कॉम्बिनेशन है मिस्टेक्स की, ठीक है, फिर मिसलेनियस मिस्टेक्स आ जाएंगी, मॉडिफायर्स हैं एडजेक्टिव्स में, फिर मॉडिफायर आ गए और फंक्शनल वर्ड्स आ गए, प्रपोजिशंस आए, आर्टिकल आ गया, एक्टिव पैसिव वॉइस आ गया आपके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन आ गई आपकी, फ्रेज़ हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन आ गए आपके, स्पेलिंग आ गए। और इसी तरह फिर हम लोग टेस्ट जो है जिसमें रख देंगे आपके इसके टॉपिक डिस्कस करने के बाद MCQs बना देंगे, डिस्कशंस आ जाएंगी, टेस्ट में आपके फॉर्म्स ऑफ वर्ब का आ जाएगा, टेंसेस आ जाएंगे, यानी जो टॉपिक एक कवर करेंगे उसी से रिलेटेड फिर आपके जो है वो MCQs भी आपके साथ शेयर करेंगे और लाइव डिस्कशंस भी जो हैं वो साथ साथ चलती चली जाएंगी। ठीक हो गया। तो इसमें आपकी कोई क्वेरीज़ अगर हुई तो प्लीज़ ये रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिएगा और चैट में आप अपनी क्वेरीज़ जो है, क्वेश्चंस जो हैं वो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, कोई भी इशू हो आप विदाउट एनी इनहिबिशन, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क, यू कैन चेक, ठीक है, यू कैन रेफ़र बैक। तो इंशाल्लाह इसमें मामला जो है वो मिल के हम सारा सॉल्व करेंगे और कोई मसला इंशाल्लाह ताला इसमें आपको नहीं आएगा। ठीक हो गया जी। तो आज के लिए बस इतना था। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।